Hi everyone. In this video we will start a new chapter that is called Bank Reconciliation Statement. Now this chapter BRS, it is from Financial Accounting of class 11. It is very easy and simple chapter. Why? Because there is nothing to do in chapter. It is have to add and to subtract, that's all. But the main thing in this chapter, students, they get very much confusion in this chapter because they see a lot of cases and lot of types. 4 cases are there. They can very much confusing. Believe me, this is very simple chapter. Why? Because once you understand the logic and the concept behind this chapter, if you have the basic knowledge of accounting, then you easily score full marks out of this chapter. Let us start. So here, according to this meaning, it is a statement which is prepared to reconcile the causes of difference between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. Here is the meaning. BRS is a statement. Now what is the meaning of cash book and passbook? Cash book relates to only in which cash transactions are recorded and which is prepared by the businessman, and passbook is the book which is prepared by the bank. All this, let us say, it is a statement which is prepared to reconcile the causes of the difference between the bank balance as per cash book and bank balance as per पासबुक. एक स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं. किसके लिए बनाते हैं? जब हमारे पास बैंक बैलेंस कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम BRS प्रिपेयर करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. ऑन 31st December, on cash book our balance is 80,000 and our passbook balance is 90,000. There is a difference is 10,000. तो इस 10,000 के डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? BRS. BRS means Bank Reconciliation Statement. Its format is very simple. You need to learn about the basic idea behind this. So let's see that. Now very first thing I am going to show you are modern rules of accounting. Now you will what? Modern rules of accounting. Come on man, we know about the modern rules of accounting. There are main 5 heads: assets, liabilities, income and revenue, capital, expenses. The rule of asset, whenever increases there is a debit and whenever decreases there is a credit. And liabilities opposite the asset. Whenever decrease in liability there is a debit and whenever increase in liability there is a credit. Same income or revenue and capital and expenses are same as asset. Whenever increases there is a debit or whenever decreases there is a credit. Now let us see the example. For example हमारे पास बैंक बैलेंस है 1 लाख. तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे. बिजनेस के लिए हमारे लिए क्या है? बैंक एसेट. और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक इट इज़ अ लायबिलिटी. देन हमारा रूल क्या कहता है? व्हेन एवर इंक्रीज इन एसेट तो हम डेबिट करेंगे, व्हेन एवर डिक्रीज इन एसेट तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक, तो बैंक क्या के लिए क्या है? लायबिलिटी है. जो बैलेंस है उसने पे करना है. तो क्या लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी. अब हम चेक करते हैं हमारी पासबुक में क्या बैंक क्या करता है? क्रेडिट करता है. क्रेडिट क्यों करता है? हमारी उनकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो इसलिए हमारे पास क्या है? इसका रूल क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे और क्रेडिट करेंगे. तो बैंक एक लायबिलिटी है. बैंक पॉइंट ऑफ व्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे तो इट मीन्स हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे. और इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. इट मीन्स हम प्लस करेंगे. नाउ बैंक
हमारे पास 1 लाख बैलेंस है. Business point of view or bank point of view. Business prepares a cash book in which cash or bank transactions are included. But in this video, we will only point bank column is to be included because BRS relates to bank. बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बैंक क्या प्रिपेयर करेगा, पासबुक इज़ वेरी सिंपल, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट और हमारे पास जो बैलेंस है. ओके, नो नेक्स्ट, बैंक बैलेंस अगर बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट करेंगे, अगर कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. सेम अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लायबिलिटी है हमारी, डाउन जा रही है तो हम डेबिट करेंगे, अगर बढ़ रही है तो हम क्रेडिट करेंगे. बैंक बैलेंस इज इक्वल टू बैंक बैलेंस एट पर CB और एट पर PB. पासबुक और कैश बुक का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, बट सम बिट हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है क्लियरेंस को लेके, कॉजेज होते हैं हमारे पास जिससे हमारा जो बैंक बैलेंस है वो सेम नहीं होता. नाउ नेक्स्ट इज द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड द पासबुक. लॉट्स ऑफ रीज़न. आइटम्स अपीयर इन कैश बुक बट नॉट इन PB. फर्स्ट वन, चेक इशूड बाय बिजनेस नॉट डेबिटेड बाय बैंक. हमने चेक इशू कर दिया बट बैंक के पास अभी क्लियर नहीं हुआ. चेक डिपॉजिट करवा दिया हमने, बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया. एरर्स हो सकते हैं, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं. जैसे हमने कोई चैरिटी पे करने को कहा तो बैंक ने कर दी, हमने नहीं की, तो क्या है, वो आइटम्स जो कैश बुक में अपीयर होती हैं बट पासबुक में नहीं अपीयर होती हैं. इससे साथ क्या होता है, हमारा जो BRS है, बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, उनमें क्या होती है, जो उनका बैलेंस है वो सेम नहीं होता है कैश बुक और पासबुक का. सम बिट आइटम्स हियर appear in the passbook but not in the cash book, like bank interest, bank charges, direct deposit at bank, bills for collection, interest and dividend. There are so many reasons whatsoever जो appear होती हैं पासबुक में और कैश बुक में नहीं appear होती हैं. तो BRS का फॉर्मेट वेरी सिंपल है, बैलेंस एज पर कैश बुक. तो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, तो हमारे पास हम कहाँ पहुँच जाएंगे, वी अराइव एट दी बैलेंस एज पर दी पासबुक. नाउ द लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो. लैंग्वेज क्या है BRS की, रिसिप्ट को हम बोलते हैं डिपॉजिट करवाना, और पेमेंट को हम बोलते हैं लाइक इशू करना, विड्रॉन करना. ओके, नाउ एग्जांपल इज, कस्टमर ने बैंक बिजनेस को चेक दिया तो हमने बैंक में भेजा तो क्लियर करवाया, तो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. ऐसे हमने दिया, सप्लायर को चेक इशू किया, उसने बैंक के 2 और 3 डेज लगाए तो उसमें क्लियर करवाया, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, डिडक्ट हुआ. At last, there are 4 cases in this chapter: balance as per cash book, balance as per passbook, overdraft as per passbook, overdraft as per the cash book. बच्चे कंफ्यूज, स्टूडेंट्स टेक टू मच कंफ्यूजन, इन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नो, इट इज़ वेरी इजी. बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. द फॉर्मेट इज सेम. बैलेंस एज पर पासबुक एंड ओवरड्राफ्ट एज पर द कैश बुक, इट्स सेम. Okay, now the next video will be coming soon. Thank you.